Welcome to again to this media conference, and this is going to be one of the best shows, of the student display of garments. That is the INFD West Delhi, and we are privileged to have our showstopper amongst us. That is Anupriya Priyanka, and you have been seeing her in so many OTT things, movies, and जहाँ तक मेरा मैं इसको अभी बोल रहा था मेरा जो फेवरेट है because we have been privileged to work in Lakme or London Fashion Week and New York Fashion Week, but we have come across so many celebrities, but certain faces which catch your attention. जो इनका आश्रम में जब ये डॉक्टर बनी थी ना, तो वो वाला role that still I remember, and these are the young men who have been organizing such a great event in your city and promoting the young talent. May it be the established designer, may it be the young designers, and Avneet Grover, our head of West Delhi INFD, and Mr. Grover is the chairman of our West Delhi Center. So they are promoting the children, and they are very, as I told you earlier also, they are very hardworking and talented team because during our Lakme Fashion Week, as you know, we are presenting the Gen Next, may it be Masaba, may it be Rahul Mishra. You just name any designer, Amit Agarwal, you just name any designer, they all have been the product of INFD Gen Next. We have done 35 seasons, this is going to be 36 seasons this time in Delhi with FDCI on 11th of October. But the best part is, in our student shows, for last 5 or 6 seasons, Avneet Center students have been winning the contest from the North Zone and showcase. And let's go, and whatever questions you have, because I know you are here for the celebrity, so whatever. I think we are here for every one of us and to celebrate fashion mostly. Yeah. Otherwise, They have to support because they are not here for the faces. I told you earlier also कि हमारे लिए फैशन सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बहुत लोगों का चूल्हा जलता है यार, बहुत लोगों ने जो आर्टिस्ट मर रहे थे उनका आर्ट, जहाँ से आप आते हो कानपुर से या झारखंड के उस एरिया से या वहाँ जो आर्ट मर रहे थे उनको स्टूडेंट्स आज लेकर आ रहे हैं, यंग बच्चे डिजाइनर लेकर। कितने लोगों ने आज देखिए आप यहाँ लगाया, किसी ने रैंप लगाया, किसी ने लाइट लगाई है, किसी ने साउंड लगाया। फैशन वीक या फैशन शोज आपके लिए या आम बंदे के लिए ग्लैमर हो सकता है, हमारे लिए जो मेकअप करता है, जो एक लाइट पे बैठा है, जो एक बार अपना गैफर है, जो भी है बच्चे, वो सब के सब स्टूडेंट एम्ब्रॉयडरी करने वाले, उन सबका चूल्हा इससे चलता है। और उसको ये फेस देने के लिए, बिकॉज यू नीड अ फेस, and we are really happy that she is here to give the voice to our fashion. Thank you so much, Zilatra. Am I supposed to? Yes. Hi everyone. So I'm really honored that today I'm show stopping and I'm walking the ramp for IIFD for the West Delhi branch. And it's been a pleasure. It's been a wonderful experience. I've been here since the whole day, and I've met Avneet ma'am, Simran, who's designed this outfit, and the team is really, very warm, extremely excited about fashion. I would love to say that Simran, who's the designer, she's made this fabric and stitched this fabric by herself, like literally, and she's created the entire range of, the entire range that you see today by her own. Means that fabric did not existed. She literally made it happen, and he's so right that to create such a pool of talent and to revive fashion from whatever was our history and then to create newer versions of it is an art that none of us can really deny. Or I'm so thankful that you guys are doing this wonderful job, and thank you to IDS and Vivin and Ronak and Avneet here. And of course, Anil sir. Anil sir is here. Okay, so I'm very confused with names, but let's start again. that is Ronit and Vibin and Anil sir and Avneet. And thank you all of you for having me here and making me a part of this. I would love to be associated with all of you again if you give me an opportunity. And to be able to contribute, as Anil sir said today, that fashion is something which all of us have, aspired to be a part of, but also it has been a means of livelihood and inspiration for generations and generations. So I'm feeling very blessed that as an actor I'm able to contribute in my own small way. Thank you. Thank you so much. Any questions you have?
सर आपसे क्वेश्चन सर, आपने अभी पीछे बात कर दी, हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर हाँ रहे जी, हैं, स्टेशन। फैशन पे आने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक फैशन की बात है तो हर घंटे में बदल जाता है। फ्रांस जैसे देख लो, यूरोप की जैसे देख लो, नहीं, या पर कहीं भी उसको देखो हाँ, आप, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि जो या तो मेरा सस्टेनेबल क्वेश्चन तो बोले जाने ना सर, तो वो आप बदल जाते हैं, तो हम उतने लॉन्ग टर्म की बात क्यों सोचते हैं, फैशन में उतने लंबे समय की बात क्यों क्यों सोच के चल रहे हैं यहाँ पर? सर इसलिए कि एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। आज के दिन में लोगों का कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि चाहे आप 10 की जगह 2 कपड़े रख लो, क्योंकि अब जब से एआई आया वैसे भी लोगों की देखो, सोशल मीडिया आने के कारण जो सबसे ज्यादा फैशन में रेवोल्यूशन आई वो आई सोशल मीडिया आने के बाद। लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपने चीप कपड़े, वो कपड़े जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते थे, वो डाइज हमने यूज करने शुरू कर दी, जो केमिकल कलर्स और ये और वो, जिससे क्या एनवायरनमेंट खराब हो रही है। आप जाके देखो वो जो घाट के अंदर पानी आता था, वो गंगा के अंदर जो जा रहा है वो सारा खराब होना शुरू हो गया था एनवायरनमेंट। और ये जो हमारी नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर्स, जो हमारा एक ओरिजिनल इंडिया का आर्ट था कि फूलों के को सुखा के उससे रंग बनाते थे, नील बनाते थे, वो बनाते थे, उससे टाई एंड डाई होता था, वही सस्टेनेबल फैशन अब वापस पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी कर रहा है। इस बार हमने आपके जानकारी के लिए लंदन फैशन वीक और न्यूयॉर्क फैशन वीक दोनों में खादी को लेकर गए हैं, और दोनों शो हमारे इस बार सुपर हिट हुए हैं। खादी इतना हिट हुआ है, खादी का मतलब लोग ये सोचते थे खादी का मतलब सिर्फ नेताओं के कुर्ते पजामे। जब खादी आता था ना तो एकदम हमारे दिमाग में इससे अलावा कुछ आता ही नहीं था। लेकिन खादी के जो बच्चों ने कपड़े बनाए वो वेस्टर्न कट्स के अंदर, वेस्टर्न सिलुएट्स के अंदर, वो इतने हिट हुए न्यूयॉर्क के अंदर और लंदन को, दोनों में हमारे साथ इंडियन हाई कमीशन शामिल रहा। और उन्होंने हमें इस बार भी रिक्वेस्ट किया कि इस बार आप आदिवासी और जो इंटीरियर में काम हो रहा है उनको लेकर आइए। तो हम इस बार कोशिश कर रहे हैं, अभी तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम 2 आर्टिसंस को लाइव लेके जाएंगे जो वहां पर वो बताएंगे, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए, ये जो हमारी गर्मी बढ़ रही है, जो हमारा हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करते हैं, उसके लिए सस्टेनेबल फैशन बहुत जरूरी है। उसका ये मतलब नहीं है कि पहले भी जमाने में होता था, हमारे बड़े भाइयों के कपड़े हम पहनते थे, उससे नीचे जाते थे, फिर वो पोचा बन जाता था, और इंडिया का एक कल्चर है। लेकिन अब जो एक जो क्विक वाला आया ना, फास्ट फूड की तरफ फास्ट फैशन, उसने थोड़ा सा खराब किया। इसलिए हमने बोला कि अब हमने जो बच्चों को बोला कि सस्टेनेबल और रैप टू रैम्प में कोई ज्यादा रेफरेंस नहीं होना चाहिए। पहले कहते रैंप के लिए जो कपड़े बनते थे वो रैप पे नहीं जाते थे, वो रैंप के ऊपर ही रह जाते थे, और रैंप के ऊपर जो कपड़े बनते थे लोग कहते थे यार ठीक है, फोटोग्राफी के लिए आपके लिए अच्छा मीडियम था, लेकिन वो रैक पे नहीं जाते थे। अब वही कपड़े हम रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसने पहना है दैट कैन बी वर्न इन एनी पार्टी और सब, जो भी कपड़ा है वो रैक तक जाए, ये हमारा एक प्रयास है। रोजी अहलूवालिया ने बड़ा खादी को बड़ा प्रमोट किया, और आज भी उनका नाम है खादी के रूप में देखा जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने यहाँ पर कहा कि स्टैंडअप स्टार्टअप, बहुत छोटे छोटे जो एक काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से एक प्रमोशन आपकी तरफ से मिल रहा है, और क्या उनका एक भविष्य फिर क्या रहता है फिर आप? जितना उनका ऑर्डर बढ़ेगा, देखिए जितना आप शो करेंगे, आज हमने यहाँ बहुत कुछ शो किया, आज इसने एक अच्छा कपड़ा पहना, इनको जचा, आपको जचा, आपने उसको हाईलाइट किया, वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है आजकल, वो फटाफट बिकता है। जितना बिकेगा उतना ही वो आर्टिसन से काम होगा। बच्चों ने खुद तो करना नहीं, उनकी तो डिजाइनिंग पार्ट है। whatever the work has to be done, physically skill work जो है वो आर्टिसन ही करते हैं, तो उनका चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, उतना ही काम बढ़ता है। आज वो जो बंदे भूखे मर रहे थे, आज आप जाके देखो जो कला खत्म हो रही थी वो कला इंडिया की बाहर गई है। ये जो आज इंडिया ने फैशन वीक्स खोले हैं, मोदी जी ने भी जो दिया था कि फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये वाला जो स्लोगन, तो वो अब फॉरेन जाने के कारण एक मार्केट बहुत बड़ी खुल गई है। और ये जो इंस्टाग्राम के कारण हो गया था कि भाई चलो वो बनानी है, वो बच्चों के लिए उसका भी सोल्यूशन आ गया। अब एआई में वो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स आ गई हैं कि एक ही कपड़े को आप 10 बार बना लो। तो आप उनको ये सिखा रहे हैं हम कि आप वो कपड़े पहनिए जो हमारे को ब्रीद इजी हो और आगे जाकर हमारे को डिस्ट्रॉय करने में इजी हो। नहीं तो वो कपड़े जलते ही नहीं थे, वो जो आता था ना चाइनीज कपड़ा, ये वो जलते ही नहीं थे। हाँ, भविष्य में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? भविष्य में तो देखिए भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह ये बच्ची आ गया पूरे देश में, एक आज आप कानपुर से, हाँ, कानपुर जैसे एक छोटे से शहर से निकलकर लड़की आज पूरे देश में अपना सिक्का जमा रही है। तो आज जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की क्रांति आई है, उससे कोई भी आदमी आज अछूता नहीं रहा। एक लेडी मैं जानता हूं जिसको, वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती है, वो हमारे से पटना से पढ़ के गई थी।
वहां से उसने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। उसका काम इतना हिट हुआ, निशा सेंगर का, वो इतना हिट हुआ कि उसको लंदन फैशन वीक की सिलेक्शन की लेटर घर बैठे आई। और वो लड़की ने जैसे ही लंदन फैशन वीक में किया, उसको इतने ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। आज इंडिया का तूती हर जगह बोल रही है। ये आपके और हमारे लिए गर्व की बात है। और आप जैसे मीडिया के जो ब्रदर सिस्टर्स, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतनी कैप्चर करते हो, ये करते हो। मुझे पता आज इतना अजीत कुमार और ये और ऐसी ऐसी न्यूज है, हाईलाइट, उसके बावजूद आपका ध्यान इधर लगा हुआ है। हमें तो लग नहीं रहा था कि आज कोई आएगा। क्योंकि स्टोरियां आपकी वो चल रही हैं इतनी, तो उसमें आप यहाँ पे आए। और भाई द वे, ये मखल, if I'm not wrong, you were the face of Congress campaign in 2013, है ना? I don't know whether it's a compliment or not. Any work is a compliment. So you remember that work for an actor, that is a compliment. my director directed that ad. परिवर्तन होना, जो सर्दी के बजाय गर्मियाँ स्टार्ट ज्यादा हो रही है, गर्मियाँ ज्यादा हो रही है, तो उसमें भी कॉटन का मुझे समझ में नहीं आया। जो करे जैसे जो because I can't see. सभी वर्ल्ड में, इंडिया में जलवायु परिवर्तन के हिसाब से गर्मियाँ ज्यादा हो रही है, सर्दियाँ कम हो रही है। कॉटन के कपड़ों का भी, कॉटन के कपड़ों का कुछ मतलब? आपने योगदान, हाँ, उससे मार्केट तो बढ़ेगी सर। मतलब उसका वो तो ऐसे क्या, गर्मी बढ़ने का तो कारण बताया ना, जो हमने खुद ही इस इन्वायरमेंट को खराब किया। जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण यही था कि जो हमने पॉलिथीन यूज किए, ये किए, जो चीजें दबती नहीं थी, उससे सारा इकोसिस्टम जो था वो चेंज हो गया। आज यदि गर्मी बढ़ रही है तो उसके कारण कपड़ों का भी, वो जो ब्रीदेबल कपड़े हैं वो इंडिया ही बनाता है। जो गांधी जी ने बोला था कि ये जो खादी है, ये एक कपड़ा नहीं है, ये एक सोच है, ये भारत का एक अभिमान है। तो वो सोच आगे अब जा रही है। अब फॉरेन वालों को भी लग रहा है कि ये कपड़े पहने जा सकते हैं, वहां भी गर्मी आनी शुरू होगी, वहां भी अब इन चीजों का। और वैसे भी अब ग्लोबल मार्केट एक हो गई है। आपकी जानकारी के लिए, वर्ल्ड के 90% ब्रांड जो हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, ये हमारी यहाँ साइडों में बनते हैं। चाहे आप लेकर फॉरेन से आओ, आप जो लेकर आते हो वो बनते ही हैं। निफ्ट और पर्ल जो निफ्ट और पर्ल के जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हैं कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो भी दे रहे हैं, तो उनके डिजाइनर, कितने डिजाइनर हैं यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके बारे में क्या सर्टिफिकेशन है और क्या उनका आगे रोल रहेगा? देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमारा काम है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। कोई प्लेटफॉर्म हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। 29 बच्चे अभी गुड़गांव के पहले करके गए हैं, मतलब 30 के करीब बच्चे अभी इनके हैं। अब पल के मुझे पता नहीं है कितने हैं आज आए हैं, क्योंकि वो मोस्टली बैक स्टेज कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा। तो वो शोकेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चा कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, वो देखो, ब्यूटी सामने वाले के है। किसी को इसका रोल बहुत अच्छा लगेगा, किसी को शायद नहीं लगेगा। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सिमिलरली, कोई भी डिजाइन बुरा या गंदा नहीं होता। हर एक का अपनी एक सोच है। आपको शायद कोई चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, मेरे लिए वो टैकी है। मेरे लिए जो चीज टैकी है, शायद वो आपके लिए ब्यूटीफुल है। इसी तरह ये वाली चीज पे हम नहीं बोल सकते कि उनका क्या फ्यूचर है, क्या नहीं। लोग देखने आए हैं, बाहर आए हुए हैं, सारे हू ऑफ दिल्ली इज प्रेजेंट हियर, एंड थैंक्स टू टू यंग जेंटलमैन जो एक मुकाबला कर रहे हैं इतने दिनों एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के साथ, और अच्छे क्राउड को ला रहे हैं। अब उनमें से कितनों को जचता है, क्या होता है, नहीं तो इंस्टाग्राम तो है ही, या वो इंस्टा पे स्टोरीज डालेंगे, ये डालेंगे। अभी मैंने इससे पहले वाले शो की डाली है स्टोरी, तो मैं अभी देख रहा था, उसके 13,000 व्यू हो गए हैं। तो ये मतलब सबसे सस्ता बढ़िया मीडियम है, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू यू गाइस। I would like to add to that question जो मुझसे पूछा गया था कि कॉटन तो ऑब्वियसली पहनना ही है चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि इट विल नॉट सूट अस, दैट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट्स आल्सो, इट्स मोर ब्रीदेबल एंड फॉर अदर हेल्दी रीजंस. But apart from that, when it comes to global warming, I think we all have a contribution to make. And global warming, one part of it is clothes and what kind of clothes are we wearing and how sustainable those clothes are, and whether they are going to be harmful to the environment after we kind of dispose them off, as sir said, कि वो एक sense कि वो कपड़ा कितना organically बना है, उसका process from the time it starts to be like used, made, provided to the consumers, वो पूरी cycle कितनी ज़्यादा environment friendly तरीके से की गई है, और जब उसको dispose किया जाता है, and वो भी एक reusability of material. Like I and many of my friends, we have now become very conscious of reusing our old Mix and clothes. match.
and not letting them know. I think my favorite of outfits are like 10, 11 years old, and I'm very open about it. The whole idea of using new things, using them once, being very social media friendly. Like there was a time I saw some people who used to start wondering if we have used something on Facebook once, we shouldn't be repeating it. That entire psyche, from whether you're using a tissue paper, or you're using electricity in your houses, or you're using your petrol in your car, or anything else, wherever we can become conscious. We are living a lifestyle which is very unhealthy, we all know that, and we become too used to it. So all of us are making mistakes every day in and day out. But wherever we can make a difference, हम में से जो भी जितना भी कर सके वो करना ही चाहिए. क्लोथिंग के मामले में अगर हम लोग ये कॉन्शियसली देख सकें कि हम किस तरह का आउटफिट पहन रहे हैं, उसको कितना, जैसे आज ये जो मैंने आउटफिट पहनी हुई है वो श्रेडेड कपड़े से बनाई गई है और वो काफ़ी वेस्ट मटेरियल से बनाई जा सकती है. An entire outfit has been designed with shredded material, put an effort and design thought, and range of outfits have been created through that. So a lot can be done to save the environment. So cotton and wearing cotton is one part of it, but the consciousness has to go far beyond that as well. If I'm making sense, I Very believe. nice. तो नेक्स्ट मूवी कौन सी आ रही है? नेक्स्ट मूवी एक बर्लिन करके मूवी है जो अतुल सब्रवाल ने डायरेक्ट की है, वो आएगी. वेब सीरीज है सुल्तान ऑफ दिल्ली करके जो मिलिंद लूथरिया सर ने डायरेक्ट की है. एंड आई डिड अ फिल्म विद विनय पाठक वेयर आई एम प्लेइंग अ साइको किलर. तो वो मैं होप कर रही हूँ जल्दी आए बाहर. और क्या क्या वो आएगी? आई नो रोल रिवर्स है. नहीं, अब मैंने काफी सारे डार्क रोल्स किए हैं तो मेरी सबको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे. बट हाँ, इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी. अभी आपकी कितनी आपको लगता है आपको? फिल्म्स की वेब सीरीज दोनों. फिल्म्स प्राइमरीली आई थिंक मैंने 5-6 फिल्म्स करी हैं, मे बी लिटिल मोर, बट जो 3 फिल्म्स काफ़ी जो चली थी जिनसे ज़्यादा मुझे एक सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन मिला था वो तो टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पद्मावती है. 3 ही है. आप दुआ करें थोड़ी आगे बढ़ेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका.